Good morning to all of you. Class 8, Subject Social Science, Chapter 4, Understanding Laws. Dear students, आज आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 42 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लॉज यानी कि कानूनों की समझ। You may be familiar with some laws, such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that the Parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? तो आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हैं। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिकों के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? Do laws apply to all? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? Read the following situation and answer the question that follows. स्थिति को पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें. A government official helps his son to go into hiding because his son has been given a 10 years jail sentenced by a district court for a crime that he was committed. तो एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। Do you think that the government officials' actions were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसीलिए कानून में माफ़ी मिल जानी चाहिए कि आपका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? The above is a clear case of the violation of law. As you read in Unit 1, members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. तो ये सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। They therefore instituted several provisions in the Constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law. इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। The law cannot discriminate between persons on the basis of their region, caste, or gender. What the rule of laws means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law.
तो हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते रहे। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। Neither government officials, nor a wealthy person, nor even the president of the country is above the law. Any crime or violation of the law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. But was it always like this? तो चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धना सेठ हो, और जहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? In ancient India there were innumerable and often overlapping local laws. प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते हैं। Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administrating these laws among their own. In some cases, the punishment that two persons receive for the same crime varied depended on the caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period. तो विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जीत के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधों को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का ये चलन खत्म होने लगा। It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। Histories have disputed this claim on several grounds, two of which include first that colonial law was arbitrary and second that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal spheres in British India. तो इतिहासकार में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि औपनिवेशिक कानून मन माने पर आधारित था। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई है। One example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law is the Seditions Act of 1870. The idea of seditions was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राज विद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का
विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप रीड करोगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कॉपी पे लिख के याद करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस